Hello, can you hear me? Sorry. Okay, so let us now discuss problems related to Maxwell's equations. And Maxwell's equations means the modified equations. Okay, so what are the four equations? Del dot E is equal to rho by epsilon naught. Del dot B is equal to 0. Del cross E is minus del B by del T. जबकि you see in electrostatics it is 0. But this is called Faraday's law, that time varying magnetic field can create electric field. Faraday's law. And the fourth is del cross B is equal to mu naught J. This is your main current plus JD. JD is displacement current. And this displacement current JD is equal to epsilon naught del E by del T. So this gives you that time varying electric field can also create magnetic field. Like time varying magnetic field can create electric field, and this JD was contribution of Maxwell. It is Maxwell's contribution. So Maxwell not only put these equation in this beautiful form, he also gave this very important concept of displacement current. This JD is called displacement current, which then explained even what is light, and all of the communication system today is based on this. Okay, so this part, if you can see that lot of questions they have been asked from this part. You can see this part is very important, and if you see 2023, you can see 3 questions. Okay, so this part is very important. So let us discuss. So a thin conducting loop of side L is placed in the first quadrant of xy plane with one of the vertices at origin. If the changing magnetic field is this, then the magnitude of induced electromotive force. ठीक है, तो a loop is put like this. This is xy plane, and this loop is of side L.
and there is a time dependent magnetic field, and we have to calculate the EMF. So what is EMF? Minus n d phi b by dt. This is EMF. Correct? So number of turns is 1, and this is d by dt of, if I just see the magnitude of EMF, it is BA. Area of the loop is constant, so it will be L square dB by dt. And what is dB by dt? Beta naught. What is dB by dt? Beta naught 5 zy, and it is B dot A. So L square is gone, but B dot Z cap is left. इस बात को जरा ध्यान से देखो. Dot product is with area vector ना, तो area vector is in Z cap direction, so it will be how much? है? L square बीटा डॉट Z, तो कौन सा बचेगा? 3y square. So L square beta naught 3y square. And area, oh, this is variable na, this is variable, so you have to just a second, देखो यहाँ से लिखो, do it step by step. d by dt of b dot a. What is b dot a? So this is variable na, it is function of y, it is not a constant. Okay, so पहले एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट लो. Just a second. So we have to calculate the flux first. So it is okay, d by dt of this, but the flux is, you have to take a small area here. This is say dx dy,
बिकॉज योर मैग्नेटिक फील्ड अगर फंक्शन ऑफ डिस्टेंस नहीं होती तब तो चल जाता, ठीक है। तो वी विल कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्लक्स, small flux, let us write first of all. So it is B beta naught into 5 Z Y T x cap plus Z x T y cap plus 3 y square T z cap dot, what is this area? dx dy, small area, and z cap. Do it step by step. Then take the dot product, only this one will survive. So d phi b is equal to beta naught 3y square t and dx dy. This is the small flux. Then total flux is given by phi b is equal to 3 beta naught t double integral 3y square dy and dx, limit of both is 0 to L and 0 to L. This is 0 to L. This is also 0 to L. Correct? Now flux will be, flux कितना हो जाएगा? 3 बीटा नॉट टी, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा y क्यूब, तो L क्यूब and that will be L. So it will be 3L to the power 4 3 beta naught 3 beta naught L to the power 4 T, and EMF will be 3 beta naught L to the power 4, derivative of phi with respect to T. Okay, so यहाँ पे आपको जस्ट ये ध्यान देना था कि magnetic field is also function of x, y. तो इसलिए जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे फ्लक्स निकालने के लिए डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए, देन एरिया विल बिकम डी एक्स डी वाई जेड कैप। इस बात का ध्यान देना। Sir, I have a doubt. हाँ, Before integrating, you have written 3y. एक मिनट, आवाज जस्ट अगेन आदित्य। Sir, near before integrating that phi b is equal to 3 beta naught t double integral 3y square. Why there is a 3? We already took the 3 outside. Oh, sorry for that. This is only one time. Okay, thank you. I think I have not taken it twice, na? Here I have not taken. नहीं सर, आपने ले लिया है सर, क्योंकि 3 वापस आ गया, क्योंकि L क्यूब बाय 3 होगा ना, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो नीचे पे बी नॉट L और 4 आएगी। अच्छा, 2 बार ले लिया है। यस सर। एक मिनट, यहाँ पे जब इंटीग्रेट करोगे तो y क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अभी ठीक है? यस सर।
Okay. Then this question is, let electric field in some region is given by this. From this we may conclude that so you see about the charge distribution, you can say del dot E is equal to rho by epsilon naught. So rho charge distribution is given by epsilon naught times del dot E. Do this. What is del dot E? It is epsilon naught times I cap del by del x plus j cap del by del y dot of E. So if you take dot of this, you get this is equal to 0. Yes? Is it okay? So rho becomes 0. So A becomes wrong. B has no charge distribution, becomes correct. C has a time dependent magnetic field. So for that, you have to see del cross E is equal to minus del B by del T. So if del B by del T is not equal to 0, then we have time dependent magnetic field. Yes or no? Yes, sir. So check del cross E. Answer non-zero है. Del cross E is non-zero. So that means Time dependent. time dependent magnetic field. The energy flux R energy flux what is energy flux? Anybody knows? एनर्जी फ्लक्स टर्म तो कहीं नहीं आता. पॉइंटिंग वेक्टर के लिए देगा. पॉइंटिंग वेक्टर एस इज 1 by mu naught E cross B. I think एक्चुअली फ्लक्स वर्ड यूज करते हैं तो डॉट डी ए भी यूज करते हैं ना. आई थिंक इट्स टॉकिंग अबाउट पावर. एस डॉट डी ए. तो एस ई क्रॉस बी, तो बी तो फाइनाइट आ गया ना. तो बी क्रॉस ई जब हम निकालेंगे, यू कैन सी इट फ्रॉम हियर. डेल क्रॉस ई कितना आ रहा है भाई? इज ई क्रॉस बी 0? ई की प्रोफाइल तो पता है. बी की कितनी आ रही है?
x e to the power minus x square, फिर से बताओ। x हम्म e to the power minus x square हम्म minus y, अरे अभी माइनस वाई। e to the power minus y square, हम्म पूरे में ब्रैकेट क्लोज, 2t k कैप, 2t k कैप, के कैप, यानी बी इज इन के कैप डायरेक्शन ना। तो व्हेन यू टेक ई क्रॉस बी इट विल बी फाइनाइट, बिकॉज वहां पे आई कैप है और जे कैप है, ठीक है ना, तो वो जीरो नहीं आएगा। ओके, yes sir, बट यू शुड कैलकुलेट इट प्रॉपरली। ई निकाला, बी निकाला, ई क्रॉस बी, ओके। Okay, next question, see, read everybody. Consider a small bar magnet undergoing simple harmonic motion along the x-axis. A coil whose plane is perpendicular to the x-axis is placed such that the magnet passes in and out of it during the motion. Which of the following statements is correct, neglecting damping effect? बताओ भाई। Induced EMF is minimum when the center of the bar magnet crosses the coil. ये तो करेक्ट है क्योंकि तब फ्लक्स में चेंज खत्म हो जाता है, ठीक है। The frequency of induced current in the coil is half the frequency of SHM. So there is, वो तो एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ चलेगा दोनों। Induced EMF in the coil will not change with the velocity of the magnet. It will change. The sign of the EMF depends on the pole. The pole depends on the pole face of the magnet which enters into the coil. So it will depend on, suppose this is the coil and it enters like this and enters like this, right? So you have seen this now, if coil is like this and N is coming towards it, so the current flows like this, yes or no? And if the coil is like this and south pole is coming like this, then the current flows like this. The direction of the current is reversed depending on which of the pole is approaching, north pole or south pole. And it is whose plane is perpendicular, so it depends on that. ठीक है भाई? ये पता है ना सबको? If you have a Yes, sir. coil like this, what type of pole is approaching? Direction of current is like that because of the Lenz law. Because if north pole is coming towards this, then flux is increasing. Then current will flow in such a direction so as to decrease the flux. And if south pole is approaching, then the current will flow in opposite direction. ठीक है?
A small loop of wire of area this 40 turns and resistance 20 ohm is initially kept in uniform magnetic field in such a way that the field is normal to the loop. When it is pulled out of the magnetic field, a total charge of this flows through the coil. The magnitude of the magnetic field is given by. ठीक है? तो this question is very important because it relates EMF to the flow of charge. EMF होता है V into I और ये होता है equal to N d phi by dt, correct? EMF होता है I into R into I and it depends on this. तो आप क्या लिख सकते हो? R into dq by dt is equal to N d phi by dt. So you can write R dq is equal to N d phi. So dq becomes N by R d phi. So this is how you calculate the. ये बड़ा ही important relation है. ठीक है? ये क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेना. क्वेश्चन नंबर 5 ये मैंने करवाया हुआ है आपको. ग्रिफिथ का क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि बिकॉज रेक्टेंगुलर लूप जो है वो उसमें हर स्टेप पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदलेगी. तो यू वांट करंट, सो यू वांट ईएमएफ. ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस विल बी करंट. चलो कैलकुलेट ही कर लेते हैं. करो जरा भाई. सपोज दिस इज द वायर and the loop is like this. This is resistance R. So how to, and this is moving with velocity V. If it is not moving, then what is EMF? Zero, because no change in flux. तो इसमें हम क्या करेंगे कि at some distance x we will take a very small strip tx और यहां पे फ्लक्स निकाल लेंगे. करेक्ट? व्हाट विल बी दैट फ्लक्स? बताओ. What will be that flux? This distance is R and this is W. What is this flux is equal to? A small flux is, बोलो भाई, magnetic field is mu naught I by 2 pi x and area is L into dx. This is a small flux. So total flux is
म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई इंटीग्रल r to r plus w dx by x. Yes or no? So it will become phi is equal to mu naught I L by 2 pi ln of r plus w by r. ठीक है? अब phi आ गया, EMF निकाल लो, E will be equal to d phi by dt. ये कर लो, you will get mu naught I L by 2 pi into what is derivative of log of this? It is, you can do the derivative. अल्टीमेटली r वेरिएबल है, ये ध्यान रखना. तो इट इज माइनस डी फाइव बाई डी टी. करो जरा, लॉग का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन r प्लस ओमेगा बाई r. पहले 1 अपॉन में जाएगा, फिर फिर माइनस ओमेगा बाई आर स्क्वायर और फिर डी आर बाई डी टी जो कि v हो जाएगा. तो v यहां से आएगा. ठीक है, r से r कैंसिल हो जाएगा. and what we get? Mu naught I L by 2 pi into W V by R plus W. Mu naught I L by 2 pi R plus W. कौन सा ऑप्शन सही है? C. ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट. मतलब ये ईएमएफ लिख दिया मैंने, करंट के लिए ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस कर देना बस. ओके, नाउ चेक क्विकली. ये दोनों तो सेम लेंज लॉ पे बेस्ड हैं. सो जब पी क्यू एंटर करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. ठीक है ना? कौन सा ईएमएफ कहलाता है वो?
मोशनल ईएमएफ, तो रोटेटिंग रॉड का मोशनल ईएमएफ मैंने निकलवाया हुआ है, दैट विल बी जनरेटेड इन दैट, एंड what will be the potential on P जब वो यहाँ पे है? ध्यान से देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. So you have a uniform magnetic coming out of the plane of the paper. So magnetic field is like this. So if I take a small positive charge here, then this charge is moving like this, yes or no? So velocity is like this and magnetic field is coming out. So it will be pushed towards this. So this side will become positive. And when this Q enters, then Q will become positive. Yes or no? So which one is correct? और जब तक इसमें रहेगा तब तक कांस्टेंट रहेगा. So this is the correct answer. Because जब तक इसमें रहेगा तब तक कांस्टेंट रहेगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ पे गायब हो जा रहा है, ये भी गलत हो गया. दिस इज द करेक्ट. सबको समझ आ गया भाई? बताइए भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट ओके? Yes, sir. एंड दिस वन इज ऑल्सो सेम. जैसे ही एंटर करेगा, तो देखो, जब ये यहां से यहां तक आएगा, देन अप टू दिस देयर इज नो ईएमएफ. As it starts entering into the magnetic field, then only flux will change. And जब ये यहां ऐसे पूरा आ जाएगा, यहां तक फ्लक्स चेंज होगा जब ये पूरा आ जाए. उसके बाद ये W है, तो W, W, 2W, 3W और 4W, तब तक कोई भी ईएमएफ नहीं मिलेगा. यू विल नॉट गेट एनी ईएमएफ. और फिर एग्जिट के टाइम पे मिलेगा, फिर एग्जिट के बाद गायब हो जाएगा. सो दैट मीन्स, लेट अस चेक. पहली बात तो फ्लक्स विल इंक्रीज. सो व्हाट आई शुड गेट इनिशियली फ्रॉम 0 to W? बताओ, 0 to W, what should we get? Minus BLV. And from W to 4W, it should be 0. So which option is correct? C, option C. And यहाँ पे देखो W लिखा हुआ है. This is wrong because this length is effective, ना? Yes or no? This is the length which is effective, not this one. Okay? So option C is correct. ये बड़े ही आराम से आप कर सकते हो ये क्वेश्चन, बस साइन का ध्यान रखना होगा. चेक दिस वन. A long solenoid is carrying a time dependent current. Magnetic field is given along the K cap. The displacement current at point P on a circle of radius R in a plane perpendicular to the axis. बताओ भाई, displacement current निकालना है. Time dependent field है, displacement current चाहिए. तो what is JD? Anyone? What is JD is equal to? एप्सिलॉन नॉट. देखो, इसको दो तरीके से हैंडल कर सकते हो. If you see this,
closed integral b dot dl is equal to mu naught I plus id, right? ये होता है. तो when you Yes, see sir. when you see displacement current, it is just this quantity, mu naught id. Yes or no? Yes, sir. So you can write it from here. लिखो. If I go by b dot dl, it is inversely proportional to r, radially outward, inversely proportional to r tangential. तो if the magnetic field is like this, देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, इसका मतलब करंट ऐसे बह रही होगी. यस और नो? भाई if Yes, sir. magnetic field is like this, that means current is like this. So if current is like this, that means current is tangential. So first is inversely proportional to r and tangential, and second is increases linearly with time and tangential. So only, and third is inversely proportional to r square. These are the options which we have to see. So it is can we calculate it using Ampere's law? We can't do because magnetic field is in k cap direction, right? We can't apply b dot dl. So let us take another route. Del cross E. इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लेते हैं, ठीक है. So how to get the electric field? Del cross E is equal to minus del B by del T. तो यहां से क्या आ जाएगा? minus 2b naught k cap, right? And del cross E is equal to this. Sorry, del cross E. Now take
if I want to use Stokes theorem, then what should I do? I should take integral dot dA on both sides. Yes? सर टी छूट गया क्या छूट गया? बी नॉट टी. टू भी हाँ हाँ, टी. टी करेक्ट. ये मैं कर सकता हूँ दोनों साइड. यस इंटीग्रल स्टोक्स थ्योरम क्या होता है? इंटीग्रल डेल क्रॉस ए वेक्टर डॉट डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रल. 2 मिनट में कॉल बैक कर 2 मिनट में कॉल बैक कर यार मैं 2 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ अक्षरा प्लीज सी योर माइक इज ओपन. ये है ना डीएल ए डॉट डीएल. स्टोक्स थ्योरम क्या है? हाँ यस this is surface and this is length. तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रल डॉट डीए कर सकता हूं ना? बोलो भाई. तो इस साइड अब मैं लिख लूंगा इंटीग्रल ई डॉट डीएल और इस साइड हो जाएगा -2b0 t इंटू dA. E इंटू 2 यहां पे लिख दूंगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. पाई आर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि पूरे से मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलेगी ना. तो कैपिटल आर मान लो या फिर मैंने कैपिटल ए लिख दिया. ठीक है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे गलती होती है. इफ द रेडियस इज कैपिटल आर राइट इट पाई आर स्क्वायर बिकॉज magnetic field is only going through the cross section. It is not going through that is P point वाले cross section से नहीं जा रहा है. तो ये हो जाएगा E into 2 pi r is equal to -2b0 t into pi r square. तो E is equal to 2 से 2 cancel -b0 t pi r square by पाई से पाई भी कैंसिल r. Is it okay? Now displacement current is JD is mu naught epsilon naught del E by del T. So it will be mu naught epsilon naught B naught r square by r. Now there is no time dependence. JD is a constant. No time dependence is there. JD is constant, but JD is inversely proportional to 1 by r. अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो. मैंने बिल्कुल बेसिक से कर दिया. Is it okay? यस सर. ये नोट कर लो अच्छे से. यही तरीका होता है करने का. In the region
मैग्नेटिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ टाइम, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन में किया हुआ है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट कर लो, वन पार्ट कर लो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी मैंने निकाल दिया है। यही क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखो। अगर मैं छोटे वाले में मैग्नेट करंट डालूं तो बाहर वाले में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं बाहर वाले में करंट डालूं तो छोटे वाले में बहुत अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आएगी, क्योंकि वो बहुत छोटा है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बाहर वाले में करंट डालो और सेंटर में फ्लक्स लिखो। लिखो जरा। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बाहर वाले में करंट दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सेंटर पे? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 by 2 R1. This is magnetic field. Magnetic field due to 1. Yes or no? Now calculate the flux. Flux will be mu naught I1 by 2 R1 into क्या होता है pi R2 स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया बताओ भाई? R2 स्क्वायर बाय R1। समझ आ गया सबको? तो why I have given current in the outer? Anybody? ताकि अंदर वाला छोटा है तो उसमें ऑलमोस्ट सेंटर वाली फील्ड ही ली जा सकती है। सेंटर पे जितनी फील्ड है, क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो सेंटर पे जो फील्ड है वही पूरे में ले ली गई। ये तो बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। वोल्टेज दिया है, वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो। V इज इक्वल टू ई डी, E इज इक्वल टू वी बाई डी, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को से डिस्प्लेसमेंट करंट लिख लो। JD इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। ओके, वेरी सिंपल। सेम इज दिस, दिस इज ऑल्सो सेम क्वेश्चन। तो सब लोग एक बार होमवर्क लिखो, आज ही फट से पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट करंट फ्रॉम ग्रिफिथ्स। ये एक बार रीडिंग कर लेने में कोई बुराई नहीं है। तो ये सारे तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक ही, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही पैटर्न पे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट पे। अब ये देखते हैं। Consider a circular parallel plate capacitor with separation D between the plates. The plates are placed symmetrically about the origin. If the sinusoidal voltage is this, which one of the following is correct? The maximum value of pointing vector at R. देखा जाए पॉइंटिंग वेक्टर, तो ये सर्कुलर प्लेट है इस तरीके का। दिस डिस्टेंस इज these are the circular plates. इसका रेडियस इज गिवन कैपिटल R and the separation is D, and D is much smaller than R. कोई बता सकता है ये इसका क्या मतलब है? Anyone? Anybody can tell this? What is the meaning of this?
this means plates are infinite plates. इसका ये मतलब है infinite plates. Okay, when large plates ले सकते हो तुम, you can consider them as infinite plates. Sinusoidal voltage is given, and what is the voltage? V is equal to V naught sin omega t. This is the voltage. Calculate the electric field. Calculate the electric field from this. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज प्लेट है तो हम यूनिफॉर्म ले सकते हैं. We can consider the electric field as uniform. तो V is equal to ED. So E is equal to V naught sin omega t by d ले सकते हैं. Yes or no? This is E. Then calculate the displacement current. JD is equal to mu naught बोलो भाई, mu naught epsilon naught del E by del T, V naught omega cos omega t by d. This is displacement current. Now you have displacement current. Calculate magnetic field. तो if I write the I क्या होता है? JD into area of the plate. Yes or no? तो current, displacement current will be equal to mu naught epsilon naught V naught omega cos omega t by d into pi r square. Correct? This is the displacement current. Now displacement current is flowing. Let us calculate the magnetic field at the edge of the plate. That means एक्सिस से r डिस्टेंस पे. तो क्या हो जाएगा? B into 2 pi r is equal to integral B dot dl is equal to mu naught into I enclosed. So mu naught into current enclosed is बताओ. सर डिस्प्लेसमेंट करंट में म्यू नॉट तो नहीं आता है ना, एप्सिलॉन नॉट del E by del T होता है. अरे यार ये मैं पहले ही लिख दिया, सॉरी. यहाँ पे आएगा ना हाँ सर. म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा cos omega t by d into pi r square. करेक्ट? पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, एंड मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा cos ओमेगा t by d. 2 भी आएगा ना? 2d. एक आ गया. एक r भी है यहाँ वाला r. और बिकॉज पॉइंटिंग वेक्टर r इज इक्वल टू r पे कह रहा था इसलिए मैं वही निकाल रहा हूं. अब पॉइंटिंग वेक्टर होता है s इज इक्वल टू e क्रॉस b बाई म्यू नॉट. और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल है और मैग्नेटिक फील्ड फाई कैप के डायरेक्शन में है, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं. तो इन दोनों के बीच का एंगल तो परपेंडिकुलर है, बस म्यू नॉट गायब हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वी नॉट साइन ओमेगा टी बाई डी इंटू एप्सिलॉन नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी आर बाई 2d. ये आ गया तुम्हारा पॉइंटिंग वेक्टर. देखो सेम आ रहा है.
वी नॉट सर हमें ये बी नॉट लिखना भूल गए जेडी में, जब हम वो लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तब डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसा नॉट बी नॉट ओमेगा है, तब हम बी नॉट लिखना भूल गए। यहाँ पे लिखा तो यहाँ लिखा है सर मैग्नेटिक फील्ड में लिखना भूल गए। एप्सिलॉन नॉट वी नॉट, एप्सिलॉन नॉट वी नॉट, एप्सिलॉन नॉट वी नॉट, राइट? यस सर। एप्सिलॉन नॉट वी नॉट। तो अब कितना हो जाएगा? वी नॉट स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट है एप्सिलॉन नॉट ओमेगा है, यस, आर है, बाई डी स्क्वायर है। अब क्या क्या बच गया उसको साइड पे लिखो, इनटू, बताओ भाई, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2, यही तो बच गया। यस सर। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 हो जाएगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं और इसको लिख दूं साइन 2 ओमेगा टी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 लिख दूं तो आंसर आ गया। ये है क्वेश्चन, समझ आ गया सबको? तो 4d स्क्वायर नीचे आ गया। इतना आसान नहीं है। So, but if you follow the steps, then it is easy. What are the steps? Voltage is given, so electric field, and they have given that D is much smaller than R. Just to make sure that the plates are like infinite plates, giving you constant electric field. ठीक है सौम्यजीत? हाँ सर। तो पहला स्टेप है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा स्टेप है डिस्प्लेसमेंट करंट, तीसरा स्टेप है मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग दैट करंट यूजिंग एम्पियर्स लॉ। फिर मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो S इज इक्वल टू ई क्रॉस बी। अब अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम के लिए पहले तुम्हें 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखना पड़ेगा ताकि साइन में आ जाए और साइन की मैक्सिमम वैल्यू तुम 1 ले सकते हो। तो ये है नाउ अगेन यू कैन डू दिस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब इस तरीके के बहुत क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, राइट? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, circular loop of radius r, magnetic field at a point within the loop is this, and neglecting the effects of any induced current in the loop, the magnetic induced EMF निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड से EMF कैसे निकलेगा बताओ भाई? Anybody can suggest? You have been given with magnetic field which is time dependent. इससे EMF कैसे निकालें? EMF क्या होता है? माइनस नंबर ऑफ टर्न्स डी फाई बाई डी टी। तो मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो पहले। क्या निकालो? मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो तो उसको टाइम के साथ डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, ये करोगे भाई? मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स, तो सर्कुलर लूप है,
सेंटर्ड एट ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन, तो ऐसे एक्स वाई प्लेन बनाओ, द लूप इज लाइक दिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन z कैप डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस. व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे लिखें बताओ? बी डॉट dA, this is magnetic flux, and fortunately your this will be K rho Q TQ डॉट स्मॉल एरिया यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो कितना होगा बताओ भाई? this is d rho and this is suppose phi, so this is d phi and this length is r d rho. So what is this area? r d rho r d phi, so r d rho d phi, this is the area, correct? तो एरिया कितना हो जाएगा? R मतलब रो, रो डी रो डी फाइव, रो डी रो डी फाइव, रो डी रो डी फाइव इज द एरिया. तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स? टोटल फ्लक्स इज phi b k t cube rho to the power 5 by 5 into 2 pi. And radius is r, so I should write it as upper limit minus lower limit, r to the power 5 by 5 into 2 pi, correct? तो EMF कितना हो जाएगा? d phi by dt, so it is k into 3t square r to the power 5 by 5 into 2 pi, ये हो गया. ठीक है भाई? यस सर. कौन सा ऑप्शन सही है? ए? हाँ सर. ये बात सबको क्लियर हुई ना कि जब हम यहाँ पे एरिया लेते हैं तो कैसे लेते हैं? मान लो ये एंगल हमने लिया थीटा, तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ये क्या हो जाता है? डी थीटा. ये आर है तो थोड़ा आर में आगे बढ़ जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? डी आर. ऐसे हम एक छोटा एरिया लिख लेते हैं, ये हो जाता है आर डी थीटा, और ये वाला एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाता है आर डी थीटा. ये ऑलरेडी आपको पता है आई थिंक. ठीक है? यस सर. अच्छा, इससे ऊपर वाला मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन में कंसीडर कर लेना, वेरिएबल सेपरेबल बना के सॉल्व कर लो. ठीक है? बाउंड्री कंडीशंस लगा दो. ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही तो है, हाँ सर. तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ के कर लो. LCR सर्किट, पावर लॉस. तो LCR सर्किट में व्हाट इज पावर लॉस? किसी को आइडिया है कैसे निकालते हैं? P इज इक्वल टू VRMS देखो इसमें R, L और C गिवन है और VRMS गिवन है.
ठीक है, तो VRMS गिवन है तो IRMS निकाल लो, ठीक है, और फिर कर दो P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ये होता है पावर। और कॉस फाई कैसे बनता है पता है ना सबको, ये VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। कॉस फाई को पावर फैक्टर भी कहा जाता है। और Z निकालना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि IRMS क्या होगा, VRMS बाई Z, राइट, VRMS बाई Z। Z क्या होता है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। XC क्या होता है, 1 बाई ओमेगा C, XL क्या होता है, ओमेगा L। अब जब यहाँ ये बनाओगे tan फाई, तो ये फाई है, इसको XC, इसको XL और इसको Z लिख लेना, ओके। Suppose the divergence of magnetic field is non-zero, तो del dot B is equal to mu naught rho m, where mu naught is the permeability of vacuum and rho m is the magnetic charge density. If the corresponding current density, magnetic current density is Jm, then the curl of the electric field क्या हो जाएगा। मतलब तुम्हें एक तरीके से चैलेंज कर रहा है कि मैक्सवेल्स इक्वेशन को बदलो अगर डेल डॉट बी इज इक्वल टू, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। यू हैव टू चेंज मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो इसका इसका जो मेथड है, इट इज फ्रॉम विच फॉर्मूला, आप लोगों को वो पता है, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाय डेल टी, ये कौन सा फॉर्मूला है, सर कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के हेल्प से डेल डॉट जे लेके और उसके बाद इसको सॉल्व करना है आपको। डेल क्रॉस ई जो है वो क्या होता है वैसे नॉर्मली, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू होता है माइनस डेल बी बाय डेल टी। तो अब अगर मैं डाइवर्जेंस लेता हूं, डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस ई, तो ये हो जाता है माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी, ये हो जाता है, यस और नो।
यस सर। तो अगर डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल को तो हमेशा जीरो होना चाहिए मैथमेटिकली, हाँ, लेकिन तुम क्या कह रहे हो? हाँ तुम कह रहे हो कि यहां पे क्या हो जाए, ये नॉन जीरो हो जाए, डेल बाई डेल टी ऑफ, तुम क्या कह रहे हो यहां पे क्या आ जाए, म्यू नॉट रो एम आ जाए, यही तो कह रहे हो? लेकिन तब ये बात कैसे सेट होगी कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज जीरो? बोलो भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल डॉट हम कर रहे हैं वो हम कंटिन्यूटी इक्वेशंस का यूज कर लें, समझ रहे हो? कंटिन्यूटी इक्वेशन का अगर हम यूज कर लें तो यहाँ पे मैं ऐड करके लिख सकता हूं समथिंग, यहाँ पे कुछ तो होगा ना जो इसको जीरो कर देगा। तो यानी बी में कुछ तो ऐड करोगे। अब इस बात को समझो, यहां से देखना शुरू करो कि यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ बी पहले जीरो हो जा रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि डेल डॉट दिस इज इक्वल टू जीरो। बट अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे माइनस डेल बी बाई डेल टी के साथ कुछ तो ऐड करना पड़ेगा x जो कि इसको जीरो बना दे। यस और नो? यस सर। तो अगर तुम्हारा डेल डॉट, अब देखो जरा ऊपर से कि वो x क्या होगा, यही तो निकालना है हमें। वापस आ जाओ भाई, हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉब्लम समझ में आई सबको? यस सर। लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है डेल डॉट डेल क्रॉस ई को जीरो होना ही पड़ेगा, और राइट हैंड साइड कह रहा है, आप कह रहे हो कि आप इक्वेशन को मॉडिफाई करना चाह रहे हो कि डेल डॉट बी जीरो नहीं है बल्कि क्या है, म्यू नॉट रो एम। म्यू नॉट रो एम। इसका मतलब ये हुआ कि ये है माइनस, बताओ, अगर मैं डाइवर्जेंस ले लूं दोनों तरफ तो डेल बाई डेल टी ऑफ डेल डॉट बी विच इज म्यू नॉट रो एम प्लस एक्स, करेक्ट? यस तो सर। इसका मतलब ये हो गया कि इट इज माइनस म्यू नॉट डेल रो एम बाई डेल टी, ये हो गया। हाँ ठीक है सर। डेल डॉट बी लिया ना, और इधर मैंने डेल डॉट नहीं लिया, सॉरी, यहां पे भी तो आ जाएगा। जब डेल डॉट लिया तो यहां डेल डॉट बी की जगह लिख दिया, और यहां पे क्या आ जाएगा, डेल डॉट एक्स आ जाएगा, करेक्ट? तो यहां पे मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा बताओ, डेल डॉट एक्स, ताकि ये जीरो हो जाए। तो डेल डॉट एक्स इज इक्वल टू आ गया, बताओ, म्यू नॉट डेल रो एम बाई डेल टी। यस और नो? हाँ सर। तो इसका मतलब ये आ गया कि अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन देखूं तो डेल डॉट जे एम इज इक्वल टू माइनस डेल रो एम बाई डेल टी होता है, अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन बना दूं इससे। यस सर। तो अब बताओ x की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? कंपेयर करो। जे एम।
अगर मैं JM लिख दूं तो डेल डॉट JM की जगह मुझे यही तो चाहिए था। अब यहाँ पे अगर मैं मान लो JM लिख देता हूं तो डेल डॉट JM की जगह माइनस डेल रो एम बाई डेल टी आ जाएगा। तो JM लिखूं कि म्यू नॉट JM लिखूं? म्यू नॉट म्यू नॉट JM। तो अगर मैं यहाँ पे देखो म्यू नॉट JM लिख दूं तो जब मैं डाइवर्जेंस लूंगा इसका तो म्यू नॉट डेल डॉट JM आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, कितना होता है डाइवर्जेंस ऑफ JM? माइनस, तो यहाँ पे माइनस ले लूं राइट, हाँ सर एक माइनस एक माइनस ले लूं ताकि यहाँ पे प्लस माइनस म्यू नॉट डेल रो एम बाई डेल टी आ जाए और वो इसके साथ कट के 0 हो जाए। समझ गए? यस सर। ये है। अगर समझ ना आए हो तो बताओ, फिर से बता दूं। अगर मैं बिल्कुल सिंपल बताऊं आपको तो देखो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इवन इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछते हैं। इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है कि तुमने एक इक्वेशन मॉडिफाई कर दिया, डेल डॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट रो एम से मॉडिफाई कर दिया और तुम पूछना चाहते हो कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि भाई डेल क्रॉस ई तो मेरा क्या था, माइनस डेल बी बाई डेल टी था। और तब मैं जब डेल डॉट डेल क्रॉस ई लेता था तो आई वॉज गेटिंग डेल डॉट बी, और पहले डेल डॉट बी 0 था और डेल डॉट डेल क्रॉस ई 100% 0 होगा। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज 0। तो पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी जैसे ही आपने मॉडिफाई कर दिया डेल डॉट बी को तो तुम्हारे डेल डॉट बी इज नॉट इक्वल टू 0 नाउ। कितना आ रहा है? माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ म्यू नॉट रो एम आ जा रहा है। मतलब ये आ जा रहा है माइनस म्यू नॉट डेल रो एम बाई डेल टी, ये आ जा रहा है। यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब हो गया कि अब मुझे यहां पे कोई टर्म ऐड करना पड़ेगा जो कि डाइवर्जेंस होने के बाद इसको 0 कर दे। करेक्ट? यानी कि यहां पे मुझे एक टर्म x ऐड करना पड़ेगा, डाइवर्जेंस ऑफ x जो हो वो इसके अपोजिट साइन का आ जाए। इज इट करेक्ट और नॉट? तो अब जब मैं लिखता हुआ आऊंगा तो मैं डाइवर्जेंस ये लूंगा प्लस डाइवर्जेंस x लूंगा। करेक्ट? और कंटिन्यूटी इक्वेशन से मुझे पता है कि डेल डॉट JM इज माइनस डेल रो m बाई डेल टी, ये होता है। तो अगर मैं इसकी जगह अब ऐड कर दूं माइनस म्यू नॉट डेल रो एम बाई डेल टी प्लस माइनस म्यू नॉट डेल डॉट JM, तो देखो क्या होगा, डेल डॉट JM की जगह क्या आ जाएगा? डेल डॉट JM की जगह माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस होके कैंसिल हो जाएगा। समझ गए? तो अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहां पे डाल दूं x की जगह
माइनस दिस और माइनस म्यू नॉट JM लिख दूं। अब डाइवर्जेंस वाली समस्या खत्म। जैसे ही मैं ये लिखूंगा और अब मैं जब डाइवर्जेंस लेता हूं तो ये हो जाएगा माइनस डेल बाई डेल टी डाइवर्जेंस ऑफ बी माइनस म्यू नॉट डाइवर्जेंस ऑफ JM। ये गिवन है माइनस म्यू नॉट डेल रो एम बाई डेल टी माइनस म्यू नॉट, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन से कितना है माइनस डेल रो एम बाई डेल टी। अब ये जीरो हो गया, सारी समस्या खत्म। समझ आ गया भाई सबको? हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट करंट पे कर लेना। ये बताओ, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जैसा अभी मैंने कराया, बस लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये तो कर लोगे, बाउंड्री कंडीशन में पहले ही बता चुका हूं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखना। A conducting wire of length m, length 1 मीटर है एक्चुअली, ठीक है। A conducting wire of length 1 meter has resistance of 0.6 ohm. It is connected to a voltage source of 0.5 volt with negligible resistance as shown in the figure. The corresponding electric and magnetic field give pointing vector S. तो S डॉट DA is calculated over the virtual diameter. अब देखो क्वेश्चन सिंपल है, आपको ये नहीं कि देख के सोचो। भाई तुम्हें वोल्टेज गिवन है A और B के बीच का, कितना है? ये वायर है AB, इसके बीच का वोल्टेज कितना है? 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट। और AB की लेंथ कितनी है? 1 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? V इंटू लेंथ, तो E नहीं, V इज इक्वल टू ED, V इज इक्वल टू ED। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0.5 वोल्ट पर मीटर। ये देखो मैं करेक्ट हूं या नहीं? हाँ सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0.5 वोल्ट पर मीटर। एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड को मुझे ऐसे निकालना पड़ेगा कि ये वायर है, ध्यान से समझना, और मुझे यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी एट अ डिस्टेंस हियर। करेक्ट? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिलेंडर का क्या चाहिए होगा? ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट वाला रो है, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। सबको समझ आ रहा है ये बात? क्योंकि भाई ये वायर है और ये रो है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई रो। इज इट ओके?
तो व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर? इंटीग्रल ई कितना होगा? हाँ, 0.5 मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई रो, और जो एरिया होगा वो एरिया ऑन द स्फेयर होगा, दैट विल बी आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, ये होगा। अब अगर आपको याद हो तो जब हम दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखते हैं एक्स वाई जेड, तो ये आर है और ये रो है, ये बात याद है या नहीं? और ये थीटा है। तो रो की जगह हम क्या लिख सकते हैं? रो इज इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना? बोलो भाई। दिस रो इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो पुट कर दो इंटीग्रल 0.5 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, and this cancels. 2 pi is cancelled by d phi, and it will be 0.5 mu naught I in 2 pi integral of d theta, something like this. हम्म, कहाँ पे? एक आर भी है, हाँ, एक ही आर कटा है ना, एक आर। और 1 बाई म्यू नॉट भी तो होता है पॉइंटिंग वेक्टर, तो ये म्यू नॉट भी चला जाएगा बिकॉज ऑफ दिस 1 बाई म्यू नॉट, 1 बाई म्यू नॉट। देखो भाई, समझ आया सबको? तो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड वाला और जो एरिया वाला, दोनों का आर अलग अलग है कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, तो इसलिए इन दोनों को मैनेज करना पड़ेगा आपको।
ठीक है, फिर अब एक सेक्शन बच गया, ईएम वेव के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो किसी दिन इसके टाइम निकाल के कराता हूँ, ये थर्मल के बाद, ठीक है? ओके भाई, ठीक है सर, ठीक है सर। चलो ओके, थैंक यू। Thank you, sir.